حضرت یہ محبت ہے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے پیسے دینے کے لیے آ رہے ہیں، مگر وہ چیز اچھی نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، تو میں یہ بات پہنچاتی ہوں، سنیے گا۔ کیسا جادو دکھائی دیتا ہے، کیسا جادو دکھائی دیتا ہے، مثل اردو دکھائی دیتا ہے، کیسا جادو دکھائی دیتا ہے، مثل اردو دکھائی دیتا ہے، میں جدھر بھی نظر اٹھاتی ہوں، میں جدھر بھی نظر اٹھاتی ہوں، مجھ کو بس تو دکھائی دیتا ہے، مجھ کو بس تو دکھائی دیتا ہے، مجھ کو بس تو دکھائی دیتا ہے، اور جادو دکھائی دیتا ہے، مثل اردو دکھائی دیتا ہے، میں جدھر بھی نظر اٹھاتی ہوں، میں جدھر بھی نظر اٹھاتی ہوں، مجھ کو بس تو دکھائی دیتا ہے، مجھ کو بس تو دکھائی دیتا ہے۔ حضرت امبر جی پڑھ رہے تھے، ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے کہا کہ تیری جدائی میں نیند اڑتی ہے، چین کھوتا ہے، دل روتا ہے، کچھ کچھ ہوتا ہے، تو امبر جی کو ایک دم بے ساختہ لڑکی نے جواب دیا کہ کمبخت تمہارے علاج کرا لے، سوائن فلو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آسارام کے خلاف بھی انہوں نے پڑھا، میں بھی 4 مصرے پڑھتی ہوں، آپ سبھی کی دعائیں چاہتی ہوں، اگر شعر ہوئے مصرے ہوئے ہوں تو آپ سبھی کی دعائیں چاہوں گے، سنیے جی۔ کیسا جادو دکھائی دیتا ہے، مثل اردو دکھائی دیتا ہے، میں جدھر بھی نظر اٹھاتی ہوں، مجھ کو بس تو دکھائی دیتا ہے۔ سنیے گا کہ بھارت کی بیٹی سے جو ٹکرائے گا، بھارت کی بیٹی سے جو ٹکرائے گا، سچ کہتی ہوں چور چور ہو جائے گا، آج قسم کھا کر یہ تم سے کہتی ہوں، دوسرا آسارام نہ کوئی آئے گا، دوسرا آسارام نہ کوئی آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ غزل کا مطلب پڑھتی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی، وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی، وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی، وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی، وقت کی بھیڑ میں ہرگز نہیں کھونے دوں گی، میں تجھے اور کسی کا نہیں ہونے دوں گی، میں تجھے اور کسی کا نہیں کہنا ہے، واہ واہ واہ، اور تو نے چھینی ہے میری آنکھوں سے میری نیندیں، تو نے چھینی ہے میری آنکھوں سے تو نے میری نیندیں، چھینی ہے میری آنکھوں سے میری نیندیں، تو نے چھینی ہے میری آنکھوں سے میری نیندیں، میں بھی اب چین سے تجھ کو نہیں سونے دوں گی، میں بھی اب چین سے تجھ کو نہیں سونے دوں گی، اور تو مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو مجھے بھول گیا ہے تو کوئی تو مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تجھ کو اوروں کے خیالوں میں نہ کھونے
वाह, वाह, दूंगी, वाह। तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। क्या कहना है, वाह, और वाह। हजरत, जिस शेर की वजह से मैंने ये गजल शुरू की, वो शेर बतौर खास आपकी अदालत में पेश करती हूँ। इरशाद। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, आप सभी शिरकत कीजिएगा, समाप्त कीजिए शेर पढ़ के। इरशाद इरशाद। कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोले वाह, 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 वाह। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने, क्या कहना निकट, वाह, बीज वाह, वाह। नफरत के किसी को नहीं बोने वाह, वाह, दूंगी। और माँ के हवाले से शेर फिर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, मैं हूँ कसम। मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, वाह 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 वाह, अपनी औलाद को पत्थर वाह 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 वाह। दूंगी। क्या जी, कहना है बाबा? अब आपका मिजाज मुझे समझ आया कि आप वाकई मेयारी कलाम सुनना चाहते हैं और मेयारी शायरी आप तक मैं पहुंचाती हूँ। समाप्त कीजिएगा मक्ते का शेर, उसके बाद एक गजल और आपकी खिदमत में हाजिर करूंगी, उसके बाद आप सभी से इजाजत। समाप्त कीजिए। इरशाद। कि फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगाकर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न सोने दूंगी, मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न वाह, वाह, वाह। दूंगी। इजाजत हो तो ये गजल का मुझे हुक्म हो रहा है। इमरान एक गजल की फरमाइश कर रहे हैं, तो वो ये गजल मैं आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। पढ़िए पढ़िए। इजाजत है आप सभी की जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पढ़ती हूँ, सुनो। जी पढ़िए। सुनी सुनी है डगर, क्या अच्छी गजल छेड़ दी भाई, वाह वाह वाह। हजरत ये सब आप जानते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि शायरी जो है वो इशारों किनारों का नाम है। शायरी जो है वो अपने महबूब से इस दिमाग की बातें करने का नाम है। एक शेर के मानी महबूब मिजाजी भी हो सकते हैं और महबूब हकीकी भी हो सकते हैं। दोनों तरफ को एक शेर के दो मायने निकलते हैं, दोनों में से कोई सा भी मायने आप निकाल सकते हैं। समाप्त कीजिए पढ़ते। कि सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, सुनी सुनी है सफर डगर, लगता है, सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, सफर लगता है, सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, साथ जब तू नहीं होता है तो डर लगता है, डर लगता है, साथ जब तू नहीं होता है तो डर लगता है, डर लगता क्या कहना? है। आपने इतना कीमती मतलब ऐसे ही जाया कर दिया। मैं दूसरा शेर पढ़ती हूँ। मेरे बुजुर्ग भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं जो डाइस पर मेरे बुजुर्ग हैं उनकी कदमों में रखते हुए ये शेर आप तक पहुँचाती हूँ। समाप्त कीजिएगा। कि साथ जब तू नहीं होता है तो डर लगता है, डर लगता है, मेरे अल्लाह ने बख्शी है जो शोहरत मुझको, जो शोहरत मुझको, मेरे अल्लाह ने बख्शी है जो शोहरत मुझको, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, असर लगता है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, असर
लगता है। वाह। और हज़रत मोहब्बत का अंजाम बुरा ही हुआ करता है। अगर मोहब्बत नहीं होती तो शायद गज़ल करने का सलीका भी नहीं होता। बहरहाल मैं शेर पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। इरशाद, इरशाद। कि इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, मेरा पागलपन। इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, मेरा पागलपन। इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, उसका हर ऐब मुझे अब भी हुनर लगता है, हुनर लगता है। भाई निकट ये शेर फिर से इनायत करते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। साथियों सारे लोग मिलके इस शेर को जरा सा सुन लीजिए। मोहब्बत यही है जिस मोहब्बत की बात मोहतरमा निकट अमरोवी कर रही है। इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, मेरी मेहनत वसूल हो गई, मैं आपके दयार में हासिल हुई। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इमरान की कि आपकी वजह से मुझे इतनी दुआएं लोगों की नसीब हुई। शेर दोबारा पढ़ती हूँ, हुक्म हुआ है। बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं नदीम फरोख साहब, सुनिएगा। इरशाद, इरशाद। इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, मेरा पागलपन। इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, उसका हर ऐब मुझे अब भी हुनर लगता है, हुनर लगता है। उसका हर ऐब मुझे अब भी हुनर लगता है, हुनर लगता है। और खालिस गजल का शेर आप तक पहुंचाते हैं। इरशाद। अहले इल्म का मजमा है, बतौर खास शेर समात कीजिएगा। इरशाद, पढ़ती हूँ। इरशाद। कि जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब, जिंदगी मुझे कुछ ऐसे फरेब। दिए हैं। आप ऐसे खड़े हैं बिल्कुल जैसे कि पता नहीं बुत रख दिए गए हैं। आपकी भी शिरकत चाहती हूँ, सुनिएगा। नहीं सब सुन रहे हैं जी। कि जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब। जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब। आईना सामने होता है तो डर लगता है, लगता है। आईना सामने होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। और हज़रात मोहब्बत में यादों को कैसे महफूज किया जाता है। मोहब्बत करने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत की जाए तो उसी से हमारी शादी भी हो जाए। सच्ची बात। मोहब्बत अगर सच्ची मोहब्बत है तो उसको आप अपने दिल में एक मुकाम भी दे सकते हैं। बड़ी बड़ी तजुर्बे की बातें कर रही हो आज निकट तुम। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। बड़ी जी, तजुर्बे। ये मैंने बस में आते में आपसे ही सीखा है। काफी समझदार हैं ये भी, अपने मतलब की बात जल्दी समझते हैं। नहीं बस में तो मैंने आज सफर किया ही नहीं, लेकिन अब तुम पता नहीं कौन सी बस का जिक्र कर रही हो। तो चलो खैर, ये शेर मैं पहले 4 मिसरे इनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। बिला वजह में इन्होंने मुझे टोक दिया, पढ़ने नहीं थे मुझे। नहीं पढ़िए पढ़िए, आप मैं 4 पढ़ती मिसरे हूँ। जरूर पढ़िए। इजाजत है अगर आप हाँ, तो पढ़ूँ मैं इनके लिए। अब 4 मिसरे मेरे लिए पढ़िए। मुझे पढ़ना इस तरह करते आप अगर साहिबे नजर होते, तंज मुझे पढ़ना इस तरह करते आप अगर साहिबे नजर होते। किसको कहते हैं हम पता चलता, किसको कहते हैं हम पता चलता। आप मेरी तरह अगर होते, आप मेरी तरह अगर होते। निकट अमरोवी साहिबा ने 4 मिसरे मेरी नजर किए। क्या इंसाफ का तकाजा ये नहीं है कि 4 मिसरे मुझे भी पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए? तो 4 मिसरे मैं भी पढ़ता हूँ, और 4 मिसरे मैं ये पढ़ना चाहता हूँ कि बहुत दिल को कुशादा करे। मैं चंद मिसरे पढ़ता हूँ।
وہ बथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरे उलझे मसाइल का नदीम भाई मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर आप सबकी नज़र करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमें ये सिखाया गया है, हमें ये तालीम दी गई है कि नाउम्मीदी या मायूसी कुफ्र है। हमें मायूस नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं होना है। यहाँ से ये शेर पढ़ता हूँ बतौर खास आपकी। क्या हुआ? अच्छा, सलाम कर रहे हैं किसी को। चलिए, तो मैं ये शेर बतौर खास हजरात गिरामी बुजुर्गों और साथियों आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर बतौर खास कि हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। और यहाँ तमाम अहले इल्म हजरात की नज़र ये शेर कि जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। हजरात गिरामी, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। शेर पढ़ने में जरूरी नहीं कि किसी सियासी शख्स का नाम लिया जाए तभी शेर मुकम्मल होगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक इशारा करता हूँ। शायरी इशारे किनायों से भी होती है और इशारा किनाये का नाम ही गजल है। मैं एक शेर 4 मिसरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आपका जहन अगर वहां पहुंच गया तो मैं अपने को कामयाब समझूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, खुदाई का ऐलान करने वाला, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। और इसी कबील के 4 मिसरे और सुन ले कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। बहुत शुक्रिया। मेरे बुजुर्गों की दुआएं मुझे हासिल हुई, मेरे लिए बहुत ये सनद का दर्जा रखती है आपकी दुआएं। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हजरात गिरामी, आपकी दुआओं से हिंदुस्तान भर के उन तमाम शहरों में जहां उर्दू के चाहने वाले हैं जाने का मौका हुआ, हिंदुस्तान से बाहर भी कई मुल्कों में जाने का मौका मिला। लेकिन एक शेर जिसने मुझे बड़ी दुआएं, जिस शेर की बदौलत मुझे हासिल हुई, वो आपकी अदालत में पेश करके बस आपकी ज़हमतें तमाम और उसके बाद हम इमरान प्रतापगढ़ी को सुनेंगे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बस ये 2 मिसरे बस ऐसे ही सुन लीजिए और उसके बाद वो शेर बतौर खास मुझे पढ़ना है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है,
वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। क्या बात है, वाह वाह। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं, ये शेर इन तमाम बुजुर्गों के कदमों में रखता हूँ। अगर आपको लगे कि मेरा शेर हर शहर में सच्चा है, हर जगह हर समाज में सच्चा है, तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। बस आपकी दुआओं के सहारे मैं यहाँ से खुशी खुशी रुखसत हो जाऊं। इस उम्मीद के साथ ये शेर हाजिर करता हूँ कि ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हाँ हाँ, ज़ईफ बाप से जो बात, वाह नदीम भाई, वाह 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 वाह। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं वाह करता, नदीम भाई, वाह वाह वाह। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। वाह वाह वाह। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हजरात बहुत शुक्रिया। ये शेर फिर दोबारा पढ़ूं? अरे बस हो गया काम साहब, बस समझ लीजिए रिस्क हलाल हो गया। कहाँ गए सोनू भाई? बैठे? हाँ ठीक है, अब सही है। सोनू भाई के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। असल में हम लोग